Welcome and good morning to online class 10th. I'm your teacher Miss Anna Maria. I'm your English teacher. Today we are going to start chapter number 17, The Inheritors. Inheritors basically हम लोग उर्दू में कहते हैं जो विरासत होती है जो जो हमारे अबाउजाद के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू जो हमको मिलती है उसको हम कहते हैं विरासत. ठीक है. Today's chapter name is आज का जो हमारा chapter है chapter number 17 The Inheritors. Okay. A poor farmer had two sons, Azam and Mozam. Their mother had died in their childhood. Now their father also died, and the boys inherited his property, which consists of a cow, a date plum tree, and a blanket. Azam, the elder brother, was very greedy and clever, but his younger brother, Mozam, was simple and trusting. Azam suggests that they should divide the property left by their late father. Late father. How shall I divide it the cow? For instance, asked Mozam. Cut it into two. No, stupid, answered Azam. We shall just divide it verbally. अबान ने हमको ज्वाइन किया है. For instance, the front part of the cow, which is the better part, should be yours, while the rear part shall be mine. Agreed? Oh, yes, thank you very much. Mozam was delighted with the generosity of his elder brother. Similarly, the top of the date plum which you cannot climb shall be mine, while the lower part, that's the trunk, shall be yours. Agreed? Yes, agreed, answered Mozam cheerfully. And what about the blanket? It shall be mine only from sunset to sunrise. That's only during the night. I shall be yours for the whole day. Agreed, said Mozam, thinking happily that it was a fair division. Now Mozam should feed the cow and Azam would milk it. They would not give a drop of milk to Mozam. Instead, he would praise Mozam for looking after the cow and feeding it so well. It pleased the innocent younger brother so much that he gave even more grass cow to the cow give more milk. In the same manner, Mozam regularly watered the date plum tree when the dates were ripe for picking. Azam climbed the tree and picked all the fruit. He did not offer even a single date to his younger brother. Of course, he praised him for looking after the tree so well. Mozam was very quiet, constant with it. I regret the blanket. Mozam had no use for it because it was hot during the day, and the night when it grew cold, he could shiver, while Azam enjoyed a deep, comfortable sleep under the warm blanket. This went on for some time. An old man of the village noticed how the younger brother was being cheated by the elder brother. One day, the old man went their house and found Mozam feeding the cow. Why you are feeding the cow? Said the old man. Because the front part is mine, answered Mozam. And who gets the milk? My brother, because the rear part belongs to him, answered Mozam innocently. Does he gives you any milk? Asked the old man. No. Then you are a fool. You look after the cow and feed her, and your brother gets all the milk. But what can I do? Said Mozam helplessly. This is all according to the agreement between us. Come here and listen to me. The old man whispered something in his ear. Next morning, as usually, Azam begins to milk the cow. Azam also came with a short stick and hit the cow head. The cow moved this way and that. Stop it, shouted Azam.
Don't you see I'm milking the cow? Don't disturb her. I'm only hitting the front part, which is mine, said Mozam. I shall do what I like with my part of the cow. Azam was a clever boy, so he guessed that somebody had advised Mozam to do that. All right, I shall give you half the milk, and now stop beating the cow. And you must also share in the feeding of the cow, said Mozam, and Azam had to agree to this. After a few days, Azam climbed the date plum tree to pick ripe dates. He had hardly collected a handful of dates when he heard the sound of an axe striking the tree. He looked and saw Mozam was cutting the trunk of the tree with an axe. Hey, what are you doing? Shouted Azam. Don't you see I am up here picking dates? I'm only cutting my part of the tree, said Mozam and went on cutting. I shall give you half of the dates, but you must stop cutting the tree, called out Azam. And you must also share in the watering of the tree, shouted Mozam, and Azam had to agree to this too. The same night the Azam came to take the blanket. He found that it was wet. What have you done with the blanket? He asked. How can I sleep under it? I don't know, answered Mozam innocently. It is mine during daytime, and I can do with it what I pleased. Very well, dear brother. From tomorrow night I shall share the blanket, said Azam. We shall sleep together and shall be more comfortable. This is the text from the inheritors. इनहेरिटर्स की स्टोरी किस तरह की है कि दे आर टू ब्रदर्स, ये दो भाई होते हैं, इनकी मदर और पहले इनकी मदर की डेथ हो जाती है, फिर इनके फादर की भी डेथ हो जाती है, फिर इनकी जो इनहेरिटेड होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है इनहेरिटेड, उसमें इनके पास होती है एक काव होती है, ठीक है, ब्लैंकेट होता है और एक ट्री होता है, डेट ट्री होता है, प्लम ट्री होता है, ठीक है। तो अब वो आपस में जब वो डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड द थिंग्स, तो क्या जो उसका जो एल्डर ब्रदर होता है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है और ग्रीडी होता है। तो क्या वो कहता है कि जो काऊ है उसका फ्रंट पार्ट तुम ले लो और बैक का पार्ट मैं ले लूँगा। मीन्स जहाँ से उसको मिल्क चाहिए, मिल्क वो खुद ले लेता था, और वो जो सारा कुछ फीडिंग वगैरह होती है वो यंगर ब्रदर का काम होता है, और एल्डर ब्रदर आराम से जो है वो उसका मिल्क को एन्जॉय करता था, ठीक है। इसी तरह जब उनका ट्री की बात हुई तो ट्री का जो ऊपर का पार्ट था तो वो एल्डर ब्रदर ने लिया, और जो नीचे का पार्ट था जहाँ पे पानी देना जो काम था, ठीक है, वो यंगर ब्रदर करता था। लेकिन फिर उसके बाद ब्लैंकेट में भी यही था कि वो कहता था सारा दिन तुम ब्लैंकेट रखना, रात में मैं ले लूँगा। तो वो रात में जबकि मौसम थोड़ा ठंडा होता था, तो उस टाइम पे वो क्या करता था कि वो शिवर हो रहा होता था, उसको सर्दी लग रही होती थी, तो वो कंफर्टेबल सो रहा होता था, और उसका जो भाई होता है तो वो सो भी नहीं पाता प्रॉपर्ली। तो उसका वहाँ पे विलेज में एक ओल्ड मैन होता है, वो देख रहा होता है कि ये क्या एल्डर ब्रदर जो है वो किस तरह अपने भाई को चीट कर रहा है, वो उसको चीट कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि वो एल्डर ब्रदर आता है एक दिन उनके घर पे, तो वो यंगर ब्रदर को समझाता है कि आप जो हो, आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो ना, कि ताकि वो आपके साथ चीज़ें शेयर करे। तो वो जब एक दिन वो एल्डर ब्रदर होता है जो वो काऊ से मिल्क ले रहा होता है, तो वो उसके फ्रंट पार्ट पे उसको स्टिक मारता है, ताकि जो काऊ थी वो आगे पीछे हो रही थी। तो क्या वो उसको कहता है, उस पे शाउट होता है कि तुम क्यों इस तरह कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे कि मैं काऊ में से मिल्क ले रहा हूँ। तो वो कहता है कि मेरा फ्रंट पार्ट है, मैं जो चाहूँ करूँ, वो मेरी मर्जी है। तो फिर वो कहता है कि मैं इसमें से आपको हाफ शेयर करूंगा, तो वो हाफ उसको शेयर करता है। इसी तरह वो उसमें भी अपने ट्री में भी यही करता है कि ट्री पे जब वो ऊपर क्लाइंब करता है, ऊपर चढ़ जाता है, तो क्या जब वो डेट्स ले रहा होता है, तो नीचे से वो एक्स से, कुल्हाड़ी से वो ट्री को कट कर रहा होता है, कट करने की कोशिश करता है। तो ऊपर से वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से शाउटेड होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग?
तो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं जो हूँ वो डेट्स जो ऊपर से जो हो वो पिकिंग कर रहा हूँ, उनको ले रहा हूँ। तो वो कहता है, वो फिर उसको ऊपर से कहता है कि तुम ऐसा नहीं करो, मैं तुम्हें ये दोनों हाफ जो है, हम दोनों जितनी भी हैं उनका हाफ जो है वो शेयर कर लेंगे। इसी तरह जब रात होती है तो जब वो ब्लैंकेट लेने लगता है तो वो ब्लैंकेट जो होता है वेट होता है, गीला होता है। तो वो कहता है कि ये क्या किया? तो वो कहता है ये दिन के टाइम मेरा तो मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ। तो वो कहता है कि कल से जो है हम दोनों जो है वो ब्लैंकेट शेयर करेंगे। देखा कि एक भाई जो है वो दूसरे भाई को चीट कर रहा था, तो जब देखे उसने थोड़ा सा उसके साथ स्टिकली हुआ, तो क्या वो उसने हर चीज उसके साथ शेयर की। तो हमें अपनों के साथ भी थोड़ा सा स्टिक होना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है, उसका भाई उसके साथ इनजस्टिस कर रहा था, तो अगर कोई आपके साथ इनजस्टिस करता है तो आपको अपने हक के लिए लाजमी बोलना चाहिए। उसने अपने हक के लिए थोड़ा सी आवाज उठाई और थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा स्टिकली हुआ, तो क्या उसने उसके साथ हर चीज जो है वो शेयर करने लग गई। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे पास क्या है? इस चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो है एक्सरसाइज के अंदर जो है एक्सरसाइज ए के अंदर हमारे पास क्या है? कंप्रीहेंशन है। ठीक है, इस कंप्रीहेंशन में वी हैव अ 10 क्वेश्चन इन दिस कंप्रीहेंशन। ठीक है, मैंने आपके साथ कंप्रीहेंशन के जो नोट्स हैं शेयर किए हुए हैं, स्लाइड में हैं, शेयर नोट्स विद यू। ठीक है, कंप्रीहेंशन ए जो है वो मैंने शेयर कर दी, ये आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज बी है। ठीक है, एक्सरसाइज बी एंड सी। ठीक है, एक्सरसाइज बी के अंदर आपने वर्ड्स की मीनिंग आउट करनी है, और एक्सरसाइज सी में आपके पास एक्सरसाइज सी में आपके पास वर्ड्स गिवन है, आपने उन ब्लैंक्स को फिल करना फ्रॉम द पेज नंबर 68 पेज नंबर पे एक्सरसाइज के अंदर ब्लैंक्स गिवन है। ठीक है, वो आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज डी का, एक्सरसाइज डी है, उसका ए बी सी एंड डी पार्ट आपने करना है, जो पेज नंबर 69 पे। एक्सरसाइज डी के पार्ट ए के अंदर क्या है? आपके पास वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने इनको सेंटेंसेस में जो है यूज करना है। फिर उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज बी के अंदर है, आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स दी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, उसके अंदर उसको आपने नाउन बनाना है। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, क्लियर, ग्रेडी, ठीक है, स्टूपिड, इनोसेंट, सिंपल, यंग, दीज आर वर्ड्स। ये वर्ड्स आपके पास दिए हुए हैं, आपने इनको क्या करना है कि आपने इनको इनके नाउन बनाने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज सी में है, एक्सरसाइज सी में हमारे पास क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द प्रॉपर टेंस ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब आपने इसके अंदर क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रॉपर टेंस। आपने प्रॉपर टेंस को यूज करना है। इसके अंदर भी आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने उसको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस जो है इसको सूट करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर एक्सरसाइज डी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ब्लैंक्स फिल करनी है, जो उसके साथ सूटेबल प्रीपोजिशंस है उसके साथ आपने ब्लैंक्स डन करनी है। ठीक है, ये आपके पास साथ मैंने कंप्रीहेंशन शेयर की है। ठीक है, ये कंप्रीहेंशन है। ठीक है, आप लोग का कंप्रीहेंशन जो है वो अपनी बुक में करेंगे। ठीक है, नाउ टेल मी स्टूडेंट, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, थिंग्स आर क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस्माइल, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, miss. ठीक है, ईमान, Yes, please. सब कुछ क्लियर है? कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा, कोई भी चीज। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, क्लियर है अब सब कुछ? Yes, Yes, please. miss. ओके, असाइनमेंट क्लियर है? असाइनमेंट समझ में आ गया कि आपने क्या करना है? आपके पास कंप्रीहेंशन मैंने शेयर करवाई है। ठीक है, फिर उसके साथ उसके अलावा क्या है, आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, जो पेज नंबर हमारे पास फ्रॉम पेज नंबर 68 वो डन करनी है। और उसके अलावा आपने एक्सरसाइज डी के जो ए बी सी एंड डी पार्ट है फ्रॉम पेज नंबर 69 वो भी आपने डन करना है। थिंग्स आर क्लियर? Yes. Okay, students, so today's session is over. So take care and Allah Hafiz.